Good morning, students. So, in a previous lecture, we have studied acylation reaction and carbylamine reaction. In this lecture, we will study reaction with nitrous acid, reaction with nitrous acid, and reaction with benzene sulfonyl chloride. Third chemical reaction of amine. In that we will study reaction of nitrous acid, reaction with nitrous acid. And what is the formula of nitrous acid? HNO2. So actually this reaction is very simple and you are familiar with this type of reaction. In 10th chapter in haloalkane and in haloarine chapter we have already studied this type of reaction. देखते हैं, reagents are used in reaction NaNO2 and HCl. This forms HNO2. It is a nitrous acid. Okay. So when primary amine are NH2, aliphatic, primary amine reacts with HNO2 or you can write NaNO2 plus HCl. It will form Rn2 plus Cl minus. Alkane diazonium क्लोराइड, जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता था वैसे ही. Now we all know that after the formation of diazonium salt there are many reactions. So अगर simply हम लोग water add कर रहे हैं, water, तो क्या हो जाएगा? You will get alcohol. Plus N2 plus HCl. We know that. So ये एक बेसिक रिएक्शन हो गया आपका. यहाँ पे आप कोई भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ग्रुप ऐड करके अपने हिसाब से कंपाउंड बना सकते हैं. okay. आपको एक एग्जाम्पल भी लिखना है, खुद बनाना. CH3 NH2 क्या होता है एंड CH3 CH2 NH2. ओके, ये पूरी रिएक्शन लिख के देखना कि क्या मिलता है आपको. बहुत ही सिंपल रिएक्शन है. नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज फॉर एरोमेटिक एमाइन, एंड फॉर एरोमेटिक एमाइन वी नो दैट रिएक्शन विथ एनिलीन, aromatic primary amine
and this reaction we have already seen in 10th chapter. NaNO2 plus 2HCl 0 to 5 degrees Celsius temperature minus NaCl minus 2H2O, we know that, and it will form benzene diazonium chloride. It will form N2 plus Cl minus benzene diazonium क्लोराइड. एंड फाइनली अब हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रिएक्शन पॉसिबल है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ये कर चुके हैं. तो सिंपली आप भी ट्राई करो. क्या करो, H2O ऐड करके क्या मिलेगा, Ki ऐड करेंगे, हीट करेंगे, Cu2Br2 प्लस HBr, Cu2Cl2 प्लस HCl. खुद ट्राई करो रिएक्शन करने का, क्योंकि ये भी हम लोग 10th चैप्टर के अंदर आगे कर चुके हैं. सो रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड खत्म हुआ आपका. ओके, नाउ द फोर्थ रिएक्शन इज reaction with benzene sulfonyl chloride. Reaction with benzene sulfonyl chloride. Now व्हाट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उसका. सो C6H5SO2Cl, benzene sulfonyl chloride, and it has a very specific use. It is used to identify primary, secondary and tertiary amines. It is used to identify primary, secondary and tertiary amine. अब कैसे यूज होता है वो देखते हैं. चलो ऐसा करते हैं कि फर्स्ट उसकी रिएक्शन करते हैं प्राइमरी एमाइन के साथ. CH3NH2, nitrogen has lone pair of electron plus benzene sulfonyl chloride. So what will happen? Nitrogen has lone pair of electron. जैसा एसाइलेशन में होता था वैसा ही होगा. Nitrogen will attack on sulfur. तो क्या हो जाएगा, माइनस HCl होगा, क्लोरीन यहाँ से अलग हो जाएगा. एंड कोई एक हाइड्रोजन, और इसको ऐसे दिखाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. सेपरेट. जब ये अटैक करेगा तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा. ओके, सो यू विल गेट
NHCH3. सो नाम हो जाएगा एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड. N-methyl benzene sulfonamide, and this compound has hydrogen attached with nitrogen, and this is soluble in alkali and water. This compound is soluble in alkali and water. ओके तो ये जो कंपाउंड बना क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा किसके साथ, अल्कली के अंदर और वाटर के अंदर. चलो सेम वे सेकेंडरी अमाइन लेते हैं. CH3 NHCH3 के क्या हो जाएगा इसका नाम, N मिथाइल मीथेनेमाइन. N मिथाइल मीथेनेमाइन प्लस benzene sulfonyl chloride. Same way what will happen, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, नाइट्रोजन विल अटैक सल्फर एंड क्लोरीन भी रिमूव हो जाएगा. ओके सो HCl माइनस HCl होगा एंड कंपाउंड कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा. Now nitrogen has no hydrogen, NN dimethyl benzene sulfonamide. Now this compound is insoluble in alkali and H2O. अब ये तो सॉल्युबल नहीं है, सेकेंडरी अमाइन से जो हमें प्रोडक्ट मिला वो सॉल्युबल नहीं है, एंड टर्शरी अमाइन जो है वो तो रिएक्शन ही नहीं देगा, नो रिएक्शन. इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा टर्शरी अमाइन, क्योंकि हाइड्रोजन देखो रिमूव हो रहा है हर एक जगह से. अब टर्शरी अमाइन के पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं तो रिएक्ट ही नहीं कर सकता. बराबर. तो इफ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन, देन इफ वी रिएक्ट द मिक्सचर विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, सो व्हाट विल हैपन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी विल रिएक्ट विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड एंड गिव दिस टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट. टर्शरी रिएक्ट नहीं करेगा तो वो अलग हो गया तभी से. अब अल्कली अंदर डालेंगे तो जो प्राइमरी से प्रोडक्ट मिला होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, सेकेंडरी से जो प्रोडक्ट मिला है वो डिसॉल्व नहीं होगा तो वो भी अलग हो गया. बराबर. तो हम तीनों को इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं. ओके ये जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इट इज नोन एज, रिमेंबर दैट MCQ में पूछ सकते हैं, इट इज नोन एज हिंसबर्ग reagent. Hinsberg reagent, it is known as Hinsberg reagent, and nowadays para
टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड, is used to separate amines. ओके, अब क्या यूज होता है ये भी आपको याद रखना है. अब यूज होता है पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड. पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड इज यूज्ड. स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर ही है. एंड यहाँ पे हो गया CH3 पैरा पोजीशन पे. ओके, तो ये स्ट्रक्चर हो गया पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड. तो अब ये यूज होता है सेपरेट करने के लिए. तो दोनों MCQ में पूछ सकते हैं और पूछे भी गए हैं बोर्ड एग्जाम में, कुछ सेट के अंदर, नीट JEE के अंदर. तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रिएक्शन विथ बेंजिल सल्फोनाइल क्लोराइड एंड रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड. ओके, सो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इतना रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के रिएक्शंस कंप्लीट करेंगे.